हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। इसमें आज हम करेंगे द गुप्तास एंड देयर इज अ सक्सेसर इज एडी 300 टू द 750। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम इसमें गुप्त वंश था उनके उत्तराधिकारी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बिहार के बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये हर जगह के लिए विस्तृत रहेगा क्योंकि इसमें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम समझेंगे। साथ में आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है शब्दों का डिस्प्ले होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो सदैव आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Economics here, according to the Gupta and their successor, their economics is the most important condition of the Gupta Empire. The, the period from the Sirika is the 4th century for the 8th century was a period of great agricultural expansion. The vast area of the land were brought the under cultivation and improvement were made in the exciting of method of production to the attain of the higher years. One of the reason for it was the practice of the granting and the land of the Brahmans, and scholar is the officer in the different area. It's a help in the wearings of virgin land under to the plug. In the plugging, there is the spirit of their knowledge and regarding their use of iron plug and the share manure irrigations and the is a preservations of cattle. Wealth in the backward area also is a contribute to the ruler is a property, and it however to the brought no relief to the peasant and the who is a continue to the suffer remembrance tax or burden. There is the most important here this time of farmer they are going to suffer a tremendous tax of burden. The Gupta and the post-Gupta is a period the witness as a competitive decline in the country as a trade and the commerce. Till AD of 550s, India is continued to have some trade with the Eastern, the Roman Empire, to which is exported a silk and the spicy. Around the 6th century, there is a Roman learned the art of the raiding silk bomb. A bomb there is the most important here. And this advice really is affected in the India as a foregone trade in the precarious or commodity, and the description on the northern western route by the Hussans was another factor for the decline. India tried to make up to the loss by carrying on the trade with the Southeast Asia countries, and but it did not be held to the revive. There is economical substantially in their loss in the trade lessened and the inflow of the gold and silver into the country. It is confirmed by the journal scarcity of the gold coin after the Gupta. The Gupta did issue the large number of gold coins called the dinars. There is the most important. The large number of gold coin is a issue. There is called to the dinars. But we have noticed that the gold coin of each successive Gupta ruler after the Chandragupta II contain less of gold and more of alloys. There is the most important of the Chandragupta II, there contain less of gold and the more of alloys. After the Gupta is very few coins of king of different than centuries
has been found. Thus is the absence of the conic as we as a presume that is a self-sufficient economical system with a limited trade and prevailed after the downfall of the Guptas. यदि बात यहाँ पर हम करें गुप्ता वंश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी उस समय अधीन में। कहते हैं अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था भी जो होता है किसी भी राज्य को समृद्ध बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाया गया, अगर सही नहीं है, तो कोई भी राज्य का जो है डिक्लाइन यानी ख़त्म होना, पतन होना स्वाभाविक बात बना देती है। तो उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कहते 14वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी का काल एक महान कृषि विस्तार का युग माना जाता है। भूमि के बड़े क्षेत्र पर जुताई आरंभ हुई तथा जो है उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु उत्पादन के तत्कालीन जो है उपलब्ध तरीकों में सुधार किए गए, और इस सुधार का एक मुख्य कारण ब्राह्मणों तथा गैर धार्मिक कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में भूमि दान करने की परंपरा रही। कहते हैं उस समय ब्राह्मण को जो है आम आदमी में भी जो है भूमि दान करने की प्रवृत्ति थी। राजा तो किया ही करते थे, बट आम व्यक्ति भी जो है ब्राह्मणों को भूमि दान किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है। इससे बिना काम वाली जो है भूमि को भी कृषि के योग्य बना दिया करते थे। लोहे वाले हल जो है गोबर की खाद, सिंचाई तथा जो है पिछड़े क्षेत्रों में पशुधन संरक्षण से ग्रामीण संपन्नता में अपना जो है सहयोग भी दिया करते थे। यद्यपि कर्ज से पीड़ित किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन जो कर्ज से पीड़ित व्यक्ति थे उनको क्या लाभ होगा। किसान को यहाँ पर दशा जो थी और जो है बेहतर से बेहतर हो गई, यानी खराब से खराब होती चली गई। कहते हैं गुप्त तथा जो है गुप्तचर युग में व्यापार तथा वर्जनीय के क्षेत्र में पतन हुआ, यानी इस समय देखा जाए तो व्यापार और वर्जनीय जो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे थी। सन जो है 550 तक भारत में पूर्वी रोम साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध थे। जब भारत मसालों का रेशमी का निर्यात किया करता था तो 6वीं शताब्दी के लगभग रोम नागरिकों ने रेशम के धागे बुनने की कला को भी सीख लिया। इस विषय वस्तु के उत्पादन क्षेत्र में विदेशी व्यापार को इससे काफ़ी ठेस पहुंची। हुनों द्वारा उत्तर पश्चिमी मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना भी इस पतन के घटकों में रहा। भारत ने इसकी क्षतिपूर्ति जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ वर्जनीय संबंध बनाकर करनी चाहिए, किंतु इससे जो है अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता प्राप्त नहीं हुई। कहते हैं एक बार अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है, दोबारा उसको जीवित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। निम्न व्यापार ने देश में सोने तथा चांदी की आपूर्ति पर भी काफ़ी असर डाला। इसका प्रमाण जो है गुप्त काल के पश्चात स्वर्ण की कमी से मिलता है, जिसमें स्वर्ण की जो है पूरी तरह से जो है सिक्के हमें प्राप्त नहीं होती है, यानी उसमें अलॉयस मिलाया गया है, मिश्र धातु जो है मिला के बनाई जाती है। तो इससे पता लगता है कि उस समय जो है गुप्त वंश के काल के अंतर्गत उनकी अर्थव्यवस्था जो थी बिल्कुल ही जो तरमरा सी गई थी। इस बात के लिए जो है गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रित चलन प्रचलन में लाई गई थी, जिन्हें दिनार कहा करते थे, यानी वो जो था उस समय दिनार के रूप में प्रचलित हो गया। किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात हर गुप्त शासक के शासनकाल में जो है स्वर्ण मुद्राओं में सोने की तुलना में मिश्र धातु की अधिकता रही। यानी देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के पश्चात जितने भी आगे आए सब में मिश्र धातु का उपयोग करने लगे। यानी गुप्त वंश के उपरांत कुछ ही वंशों के समकालीन सिक्के प्राप्त हो पाए हैं। सिक्कों की जो है अनुपलब्धता से यह समझा जा सकता है कि गुप्तों के पतन के पश्चात एक सीमित व्यापार वाली अपने में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है उदय हुआ था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की ओर संकेत करता है। और इन्हीं कारणों से जो है गुप्त वंश का जो है पतन होना स्वाभाविक बात था। कहते हैं अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए, किसी भी काल के लिए, किसी भी समय के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान होता है, और वो जो है डिक्लाइन हो जाना इसका मतलब है कि जो है संतुलन का भी विघटन होना स्वाभाविक बात बना देती है। लिटरेचर, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर हियर, देयर आर पार्ट ऑफ द गुप्ता एंड there is a successor. There is a most important literature here. The Gupta period is considered as the golden age of the art and literature. There is a most important here. A hug body of the religious and scholar literature was completed in the period. The two is a great epics, and Ramayana and Mahabharata were finally completed in the 4th century. There is a most important Ramayana and Mahabharata. There is finally complete on this era. The story of both the epic symbolize the victory of good over evil.
that is the most important. And both Rama and Krishna is come to be considered as the incarnation of the Vishnu. That is also important. The Gupta period is a mark the beginning of the written of the literature is now as the Puran. There is the most important here Purans, and this text is referred to the story about the Hindu gods and the mention the way to the place of their through the past and pilgrimage image, and the major Puran written in the period are there a Vishnu Puran, is a Maya Puran, and the Matsya Puran. There Matsya Puran is the most important here for the worship of the Shiva, Shiv Puran, and the written is the way to the various incarnations, and the Vishnu are the is glorified in the Brahman Puran, Vaman Puran, and the Narsimha Puran. There is a mean for the worship of common man, and some Smritis are there are law books where also is a complied in the Gupta period, and one of these is a Narada Samriti. Narada Samriti through there is a light on the general social and economical rule and the regulation of this period. The literature is a Gupta period was written in the Sanskriti language. There is the most important Sanskriti. The great of all the poet was Kalidas, who lived in the court of Chandragupta II in the 15th century. There is the most important here, and his the work are the very famous and has been to the translated in the many European languages. Some of the work that is the author as the Meghdootam, Avi Sakuntalam, and the Raghava Meshwam, and the Kumar Sambha, and the Ritu Mahara. There is the most important here. The notable is a feature of the work is that is the character of the higher caste speak a Sanskriti will the those of lower caste and the women speak in the Prakritik. The other famous is the dramatics is the two have a flourish in the period are Sudraka at the right Vada, Mlik Chakratram, and the Vishukadata, who is the author Vada Mudraksha. There is the most important here. In the 17th century is the Bandevate, their court poet of the Harsh. There is the most important. The 17th century is a Banbhatta is the court of poet of Harsh and the Harsh Charitra. The Parasik of the poem there is a province written in there is another style in become a model for the later writer. The earlier history of the Harsha is constructed on the basis of text, and another text written by him to the Kamdabari. The Kamdabari is the most important here, Kadambari, and the Harsh too is considered to be a literacy is a marches, and he is said to have been authorized three play of Priyadarshanika, Nagananda, and the Ratanvali. The Ratanvali is the most important here. In South India is a period from to AD 550 to 750. The witness their growth of Bhakti literatures. In a Tamil song where is composed by the Vishnua, Sant is a Alvar, and the Seva is a Sant is a Nayanars in the palace of their respectives of gods. One of the most famous of the Alvar Sant where is a woman is called Andal. There is a Vaishnava is devotionally is a song where later is arranged in the text called to the Nayara Prabhandham, and will there those of the Savitis and they are preserved in there is a text is known as the Devan Varma. This is Devan Varma is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक साहित्य। देखिए साहित्य का अपना बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होता है। कहते हैं उस समय कि हमें राजनीति की जो है पूरी बातों का जो है सही ज्ञान होता है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है? साहित्य से। यह साहित्य जो है ये किसके अंतर्गत है? गुप्त वंश था उसके उत्तराधिकारी के अंतर्गत जो है हमारा साहित्य है। गुप्त वंश में जो है साहित्य की क्या मतलब स्थिति थी? कहते हैं कला तथा साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल का स्वर्ग युग माना जाता है। यानी गुप्त काल में देखा जाए तो साहित्य का जो है बहुत विकास हुआ। आखिर क्यों हुआ देखिए, और किस कारण से हुआ? कहते बड़ी संख्या में धार्मिक तथा अन्य साहित्यिक रचना इस काल में हुई थी। रामायण तथा महाभारत दोनों ही महाकाव्य 4वीं शताब्दी से पूरे हो गए। यानी देखा जाए तो इस काल में 2 महाग्रंथ की रचना हुई। कौन? रामायण महाभारत का। कहते हैं रामायण महाभारत जो थी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो भी इसी 4वीं शताब्दी में ही पूरी हुई। दोनों ही महाकाव्य के विषय वस्तु में अधर्म पर धर्म की विजय को दर्शाया गया।
कहते हैं राम और कृष्ण दोनों ही जो है भगवान विष्णु के अवतार इसमें दिखाया गया, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं गुप्त काल के साहित्य में पुराणों का जो है अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान रहता है। इन रचनाओं में हिंदू के देवी देवताओं की कहानियाँ को जो है काफ़ी दर्शाया गया तथा व्रत तथा कर्म कांडों को तीर्थ यात्रा द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के तरीका का भी विवरण किया गया। इस काल में जो है कहते हैं बहुत ही मुख्य पुराण थे, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। शिव की आराधना के लिए शिव पुराण की रचना हुई, वही विष्णु के विभिन्न अवतारों को जो है महिमंडन ब्रह्म पुराण, वामन पुराण और नरसिंहा पुराण में मिलता है, जिसमें सारे जो है विष्णु के अवतारों का वर्णन जो है स्पष्ट रूप में की गई थी। ये साधारण जन के लिए लिखे गए थे और गुप्त काल में कुछ विधि विषयक पुस्तक जैसे समृद्धि भी लिखी गई। इनमें से नारद समृद्धि सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक नियमों तथा नियमावलियों पर प्रकाश डालती है, जो कि नारद समृद्धि में के अंतर्गत आती है। गुप्ता कालीन साहित्य की भाषा संस्कृति थी और संस्कृति के जो है नतम कवि जो है कालिदास 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के मुख्य रत्न में से थे। उनके साहित्यिक कार्य बहुत ही लोकप्रिय थे तथा कई यूरोपीय भाषा में उनका जो है अनुवाद भी हुआ। उनकी कुछ चर्चित रचनाएं मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम, राजवंश, कुमार संभव और जो है ऋतु संहार सब के सब जो काफ़ी फेमस थे। यानी देखा जाए तो इस समय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथों की रचना हुई, काफ़ी इम्पोर्टेंट भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया। कहते हैं मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाओं में से मानी जा सकती है। इनकी रचनाओं का मुख्य आकर्षण उच्च कुल के पात्रों द्वारा संस्कृति का प्रयोग तथा साधारण लोगों द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग रहा। इस युग के अन्य चर्चित लेखक जो थे शूद्रक, जिन्हें हम जो मच्छकटम और जो है विशाखा दत्त, जिन्होंने मुद्राक्षस की रचना किया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मुद्राक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाओं में मानी जाती है, जिसकी रचना जो था शूद्रक ने किया था। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के दरबारी कवि ने अपने संरक्षण की प्रशंसा करते हुए हर्षचरित का जो है सूचन किया था। कहते हैं अत्यधिक जो अलंकृत भाषा में लिखी गई यह रचना बाद के लेखकों के लिए बन गई उदाहरण। हर्षवर्धन के शासन काल के आरंभिक इतिहास की जानकारी इसी पुस्तक से हमें प्राप्त होती है। उसके द्वारा लिखी अन्य रचना जो है कादंबरी। हर्षवर्धन स्वयं भी एक साहित्यिक सम्राट था। कहा जाता है कि उसने 3 नाटक लिखे, जिसे हम प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नवाली के नाम से जाना जाता है। यानी ये तीनों रचना जो थी किसकी थी, तो हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागनंदा और जो है रत्नावली की रचना किया। कहते दक्षिण भारत में सन 550 से 750 तक तमिल में भक्ति साहित्य की जो है सृजन हुआ। अपने अपने देवताओं की प्रशंसा में वैष्णव संतों ने अलंबर, जो है शैव संतों ने नयनार ने गीतों का जो है सृजन किया। अलंबर संतों में सर्वाधिक चर्चित संत एक महिला अंदल थी। यानी देखा जाए तो महिलाओं ने भी बहुत काफ़ी रचना को इम्पोर्टेंट बना दिया। वैष्णव भजनों के बाद में जो है नलीरा प्रबंधम और शव्य भजनों को देवराम नामक संकलन में संकलित कर लिया गया। तो ये काफ़ी साहित्य जो थी, काफ़ी साहित्य से प्रकाश मिलती है कि उस समय जो है रचना के लिए ये जो है गोल्डन युग ही माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है हर एक रचना जो है इसी काल में रची गई। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये एक स्वर्ण युग थी। किसके लिए? साहित्य के लिए। The next is the most important topic here, art and architecture. There is the most important here. There is according to the Gupta and there is succession. That said, India art is mainly inspired by religions. As in the earlier time, Buddhists give a great impetus of the art of Gupta period also. A life size and the image of Buddha is made is a copper is the found from a Satluj in a Bihar. Is a Satlanganj in a Bihar. There is the most important here, Satlanganj. Here also you issue the Ashmedha types of coin is mentioned above. In the peninsular India is also worship of Vishnu and the Shiva was becoming a popular. The Pallavs is a ruler is a constructed is a stone temple in the 7th and the 8th centuries to be house of the image of these gods. The most famous are the 7
revered as the temples is made out of the solid piece of the stone constructed by the king is Narasimha Varman and the Mahabalipuram. 65 kilometers for the Chennai, the Pallavas as a built many structural is a temple. One of the most important among them is the Kailash Nath temple is constructed in a 18th century. There is a most important here. The Chalukyas of the Patapis as also spread to the numerous temple at the Hilo Hall is a Badami and the Patadakkal. And the Patadakkal is has as many as 10 temple built in the 7th and the 8th century as a Birpukasa is a temple. There is a southern style of the architectures as come to now there is a Dravid. हमारे समक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कला और स्थापत्य कला। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कोई भी समय काल में कि उस समय की कला क्या थी, और देखा जाए तो उन्हीं कलाओं में जो होती है बहुत सी जो है राज छुपी हुई होती है, और ये कला जो होती है उस समय की विशेषताओं को जो है वर्णित करती है। तो देखा जाए तो हमारे समक्ष जो आया है गुप्त वंश के उनके उत्तराधिकारी के अंतर्गत कला तथा स्थापत्य जो है कला किस प्रकार की थी। कहते हैं प्राचीन भारतीय कला मुख्यतः धर्म पर आधारित होती थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाता है। गुप्त काल में भी जो है बौद्ध धर्म ने कला की आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित किया था। कहते हैं सुल्तानगंज विहार में तांबे की बनी विशालकाय प्रतिमा पाई गई, जो कि बहुत बड़ी जो है उस समय की कला को जो है निर्धारित करने के लिए पर्याप्त थी। यानी सुल्तानगंज में जो है बिहार में तांबे की बनी विशालकाय प्रतिमा उस समय कैसे बनाई गई, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। मथुरा एवं जो है सारनाथ में महात्मा बुद्ध की आकर्षक प्रतिमाएं गढ़ी गई। गुप्तकालीन जो है बौद्ध कला का सबसे प्रकृष्ट उदाहरण अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी थी। कहते हैं अजंता की गुफा में जो चित्रकारी की गई बहुत ही उत्कृष्ट थी। महात्मा बुद्ध एक एवं जातक कहानियों का जो है वर्णन करते इन चित्रों का जो है पक्का रंग 14 शताब्दी उपरांत भी हमें फीका नहीं होता है। अजंता की गुफा अब जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित हो चुकी है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ गया है कि अजंता की गुफा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ आती है। देखा जाए तो गुप्त काल में ही प्रथम बार जो है भवन के आकार के मंदिर निर्माण की शैली उत्तर भारत में विकसित हुई थी, और इन मंदिरों को जो है शिल्पकला में जो है नागढ़ के नाम से जाना गया। इस प्रकार के 2 मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर में जो है भितरगांव एवं झांसी में देवगढ़ में पाए गए, जो क्रमशः ईंट तथा पत्थरों द्वारा निर्मित होती थी। इन मंदिरों में विष्णु की प्रतिमाएं केंद्र में मुख्य देव के रूप में स्थापित हो रखी थी। गुप्तकालीन मुद्राएं भी कला का ही उत्कृष्ट उदाहरण थी, और उनकी बनावट सुंदर थी तथा जो है सत्रकर्ता से उन्हें गढ़ा गया था। यानी बहुत ही जो है अंतराल में इसको गढ़ा गया था, और इन पर जो है शासकों की गतिविधियों का भी आकर्षण ढंग से चित्रण होता था। समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई संगीतात्मक स्वर्ग जो है स्वर्ण मुद्राओं में उसी बीना बजाते हुए दिखाया जा सकता है। इस चित्र में संगीत के प्रति उसका आकर्षक दिखाई देता है। जैसा कि ऊपर वर्णित है उसमें अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं भी प्रचलन में लाया था। यानी देखिए अश्वमेध जैसी मुद्रा भी लाना एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय जो है प्रायद्वीपीय में शिव तथा विष्णु की आराधना जो है लोकप्रिय हो रही थी। इन देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने पत्थरों के मंदिर का निर्माण कराया। सर्वाधिक प्रसिद्ध 7 मंदिर है। प्रत्येक मंदिर पत्थर के ठोस टुकड़ों से बना हुआ है, और यह चेन्नई से जो है 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में स्थित है, एवं उसका निर्माण राजा नरसिम्हा वर्मन ने करवाया था, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। पल्लव के शासन में सर्वाधिक उल्लेखनीय मंदिर 8वीं शताब्दी में जो है कैलाश नाथ मंदिर जो थी काफ़ी फेमस थी। वर्तापी के चालुक्य भी मंदिर निर्माण में पीछे नहीं रहे। उन्होंने जो एल्होल बदामी तथा जो है पत्तादरकल में जो है असंख्य मंदिरों का निर्माण करवाया, और 7वीं 8वीं शताब्दी में जो पत्तादरकल में भी जो है दल मंदिर का निर्माण हुआ, जो विरूपाक्ष मंदिर भी है। मंदिरों के दक्षिण भारत की स्थापत्य कला को द्रविड़ कला के नाम मिला, जो कि काफ़ी ज़रूरी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं हम उस समय के चित्रकारी किस प्रकार की थी, वो हम चित्र देख के ही हम समझ सकते हैं। देखिए हमारे समक्ष जो प्रतिमा दिख रहा है वो देवनगर का है, जिसमें जो है नर नारायण का चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है
ये निंद्रित मुद्रा में दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कहते हैं उस समय इन सब बातों का जो है भली भांति उनको परिचित था, यानी देखा जाए तो इन्होंने इसी बात को दर्शाने के लिए इस जो है चित्र में जो है मुद्रित रूप में दिखाना एक स्वाभाविक बात था और काफ़ी इंपॉर्टेंट दृश्य दिख रहा है। तो कह सकते हो कि उस समय के जो थी कला काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी विख्यात थी और काफ़ी उत्कृष्ट थी। इस चित्र से आप भली भांति परिचित हो गए। रथ मंदिर महाबलीपुरम का है, जो कि उस समय के चित्रों को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। आप देख सकते हो कि उस समय जो है पत्थरों को काट के कलाकृति बनाई गई और वो भी काफ़ी खासियतों को लेके। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी ये विशाल काय है, यानी इसको बनाने में कई लोगों ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी महानता कृतियों को जो है आज हम देख पा रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रथ मंदिर महाबलीपुरम का दृश्य, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी और के समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है कई बार जो है चित्रों को आपके एग्जाम में आता है और उसको जो है पहचानना पड़ता है। चाहे कोई भी कंपटीशन में होता है, कोई चित्र आपको दे दिया जाता है और आपसे उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो चित्र भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आज के समय में एग्ज़ाम के पेपर बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से जो है आपको पढ़ाई भी करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इस बात की भी है कि जितना हो सके जो है इस वीडियो को शेयर करना है और जो है आपने इसको जो है सब्सक्राइब करके सेव भी करना है।